दोनों के साथ में मैं वर्कशॉप करवा रहा हूँ इसकी। तो आई थिंक लाइक हमारे साथ मतलब लाइक IEEE में तो मैं ही अकेला डिज़ाइन देख रहा था, बट इन प्रिज्मेटिक वी ऑल आर टीम, वी आर अराउंड 4 to 5 मेंबर्स करेंटली हैविंग। हम लोग हैं यहाँ पे। तो इन द चैट बॉक्स अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो उसके रिस्पॉन्सेज मिलते रहेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट टास्क भी दूंगा मैं भी इस वाली वर्कशॉप के बाद। बट ये वाली जो वर्कशॉप है मतलब ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कोर बेसिक जिसे कहते हैं फोटोशॉप का, वो ये उसमें काउंट होती है जो सिलेक्शन टूल्स होते हैं, बिकॉज everything is like majorly based on selection in Photoshop. तो सारे टूल्स जितने हैं फोटोशॉप में सिलेक्शन वाले हम कवर करेंगे। तो गाइज एक बेसिक लेआउट जो पिछली बार का है, इट्स लाइक बहुत बेसिक टूल्स डिस्कस किए थे हम लोगों ने, जितने बेसिक टूल्स होते हैं लाइक मूव टूल, टेक्स्ट टूल एंड पेन बकेट टूल एंड लेयर्स क्या होती हैं, लाइक बहुत बेसिक डिस्कशन था। लाइक प्रीवियसली व्हाट वी सॉ, लाइक वी वर वर्किंग ऑन basic tools. I think we created just a scenario using some PNGs, but now what we would be doing is that getting full of objects and going further. So in this case, I'll be choosing an A4, and यहाँ से आप orientation choose कर सकते हो, whether you want A4 to be in a portrait form or a landscape form, correct. And resolution, try to keep it 300 only. If your PC is a bit lagging or something else, then make it to 72, I believe. 72 is generally used for flexes, and please note these values. I think it would be really helpful later on. And next thing is important that you use 8-bit, because 16-bit files are a bit larger and processing might be slow on your PCs. So if you are having a very high-end PC, no issues, you could use 16-bit too, and keep this mode RGB only. This time I'll be using an A4 with a 300 pixels per inch resolution and a landscape mode. So I think this must be clear. As a short recap for the previous one, this is the toolbox we are having. These are the options where we are having some good features. And next is the features of the particular tool or the properties of that tool, that what to do with that tool. And next, here is the layer panel. We have channels and path over here. And here are the blend modes. Blend modes we'll be discussing in the next class. And next we have what we have is adjustments for a particular photo or for a particular group of layers. And this is the main canvas where we draw something. Hope this must be clear to all. And I think these were the basic tools. Move tool we have discussed, and second tool we discussed was the eraser. We have discussed it, paint bucket tool, text tool, and the shape tool. I think these were the only tools that we discussed. And these are pretty much easy, just drag and drop. Like shape, you just click on it and created a shape. Like just click a bit on it here, and what we get is a options of multiple tools, shape tools that we want to create. So I think these are pretty much easier. And now the next part we are going to do this time is selection tools. Like if there is a group of pictures and you want to extract a particular one, so Photoshop provides a variety of tools for it. Like I'll be starting with some ones. Like this is known as the rectangular marquee tools, and it has different, these are basically shape based marquees. Like if I have an exact rectangular figure, I'll be using rectangular marquee tool. Like everything is designed over it. I'll be explaining it, just a brief introduction to all the tools what we are having. Next is the lasso tool. Like it's a important tool, like it draws the selection. And next one of the important tool is quick selection tool and the magic wand. Like these two tools are just amazing. Like these are the major ones, and there are one or two more that we'll discuss in the end, but first we'll just going through these only. So firstly, I think what we would be doing is like getting a photos onto our drag and drop. See, if you drag a photo on the canvas, this is one of the main difference which I also need to show you guys.
Like if you drag on the canvas, it's like you get the image over your canvas, but if you drag on the layer, it would create a new file. Like this is the main file. The scenario which I wanted to create is like of a basic room. So guys, like first thing in a room, what we need is a background wall, I believe. So I'll just take a rectangle over there, and a basic, it's like a basic wall we are creating, and the color is green. I think it won't be looking good. So guys, जब भी rectangle बनाओ and you need fill पे जाओ, and these are some presets color, and like थोड़ा हमने bright orange kind of लिया है. Will changes later अगर हमें पसंद नहीं आया तो. And next हमें एक हम थोड़ा सा wall का और इसका सेग्रीगेशन सा बना देते हैं. लाइक ये हम थोड़ा 3D में भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, बट अभी के लिए लाइक इट्स गुड, अभी इसमें ही अच्छा लगेगा. लाइक इसको थोड़ा डार्क रखा हमने. एंड नेक्स्ट व्हाट विल डू इज लाइक क्रिएट वन मोर रेक्टेंगल ओवर हियर, like this only. I believe it's and अब इसका भी कलर चेंज करेंगे. जस्ट सिंपली गो एंड चेंज द कलर. आई थिंक these look good. लाइक अभी थोड़ा कॉन्ट्रास्ट रखा है कि थोड़े डिफरेंसेस पता चले. सो देखो, बेसिक 3 रेक्टेंगल से हमने अपना बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया. एंड नेक्स्ट थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू is like now we need to drag photographs. So suppose this is a wall, what basic thing first we would needing is a like a clock. Like clock is a basic thing. So guys, अब देखो ये एक एग्जैक्ट सर्कुलर फिगर है, एंड मुझे इसी सर्कल को जस्ट इस इमेज में से एक्सट्रैक्ट करना है. एंड इसमें से एक्सट्रैक्ट करने के इसमें हमारे पास 2 से 3 तरीके हैं. 2 से 3 के सारे ही तरीके हैं जो हम यूज कर सकते हैं, बट इसमें सबसे ज्यादा फीजिबल एंड इजी तरीका है लाइक आई गो टू द रेक्टेंगुलर मार्की टूल. इसे रेक्टेंगुलर कहते हैं, बट ये होता है शेप बेस्ड. लाइक इसमें पहले से शेप्स असाइंड है. लाइक इफ इट्स रेक्टेंगल, यूज रेक्टेंगल 1, और इफ यू यूज इलिप्टिकल, सो गाइस इलिप्टिकल हमने यूज किया. एंड विल जस्ट गो टू द सेंटर, एंड सेंटर से हल्का सा शुरू करो एंड प्रेस शिफ्ट प्लस ऑल्ट. तो शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्रेस करके आप सेंटर से ड्रैग करना शुरू करोगे तो लाइक ये एग्जैक्ट एक उसके पाथ में आ जाएगा. एंड इसको हमने अब कर दिया. तो देखो गाइज, एक सिलेक्शन लेयर काइंड ऑफ, एक ये डॉटेड लाइन सी जो एक्टिव है ये हल्की सी बन गई है. तो लाइक इट्स लाइक कि अब हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो इसके करने के 2 तरीके हैं. या फर्स्ट लेयर वाया कट एंड लेयर वाया कॉपी. इन दोनों में डिफरेंसेस होता है. लेयर वाया कॉपी क्या करेगा, आई थिंक आई शो इट. लेयर वाया कॉपी क्या करेगा, इट वुड क्रिएट अ कॉपी. लाइक इसको मैं छुपाऊंगा तो इसमें से मेरा ये लेयर अलग से एक्सट्रैक्ट हो गई, एंड द प्रीवियस वन रिमेन्स एज इट इज. दिस इज लेयर वाया कॉपी. एंड लेयर वाया कॉपी करने के लिए यू नीड टू प्रेस कंट्रोल जे और कमांड जे. कंट्रोल जे और कमांड जे. एंड नेक्स्ट इज लाइक, देखो अगर वो नहीं भी हुआ है तो आई थिंक लाइक कंट्रोल जेड किया मैंने फिर से, एंड वी गॉट दिस वन अगेन. या इस पे राइट क्लिक कर दो तो यहाँ पे लेयर वाया कट एंड लेयर वाया कॉपी का ऑप्शन आएगा. एंड मेक श्योर जब आप लेयर वाया कट कर रहे हो तो ये लेयर रेस्टराइज होनी चाहिए. रेस्टराइज एंड स्मार्ट ऑब्जेक्ट पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था. तो रेस्टराइज होनी चाहिए. अगर नहीं है, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनी हुई है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का आइकन यहाँ आ रहा है, तो गो एंड रेस्टराइज द लेयर. अभी रेस्टराइज्ड है, इसीलिए हम इसमें से लेयर वाया कट कर पा रहे हैं. कट करने पे क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट जे. तो गाइज अब मैं इसको हाइड करूंगा, तो इसमें से जो मेरी मेन इमेज थी उसमें से वो पार्ट एक्सट्रैक्ट हो गया. like if you want to extract you need to use layer via cut. and अगर आपको उसमें नॉर्मल करना है तो जस्ट इफ यू नीड टू क्रिएट अ कॉपी एंड यूज इट समवेयर एल्स और लाइक एनीथिंग, सिंपली यूज लेयर वाया कॉपी. दैट्स कंट्रोल जे. कंट्रोल जे इज फॉर लेयर वाया कॉपी एंड कंट्रोल शिफ्ट जे इज फॉर layer via cut. This we have extracted the clock and just simply click on it and drag it in our main layer and see. यहाँ पे आ गई. तो थोड़ा रिसाइज करेंगे एंड इसको कंट्रोल टी फॉर रिसाइज और कमांड टी इफ यू हैव फॉरगॉटन. I just placed it over here. It's look good. Next thing what we needed was a window. So guys, अगर मैं थोड़ा इस पर zoom करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं
पहले रेक्टेंगुलर मार्क, सॉरी। सो गाइज अब देखो यहाँ पे ये सिंपल रेक्टेंगुलर फिगर आ गई। तो अब सिंपली क्या करना है, हमें इसका एक कॉर्नर लेना है। ओके, सो अब इट्स सिंपली रेक्टेंगुलर फिगर, हमें दिख रहा है कि आराम से हो जाएगा। तो व्हाई आई नीड टू यूज अ कंप्लीट प्रोसीजर, तो जस्ट मैं सिंपली एक कॉर्नर से ड्रैग करूंगा एंड आई यूज दिस ओनली। दिस इज परफेक्ट आई थिंक। देखो अभी लेयर लॉक्ड है, लेयर लॉक हो तब भी एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो आई जस्ट डू सिंपली कंट्रोल जे, क्योंकि मुझे कॉपी ही चाहिए, एंड आई जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर एंड ड्रैग इट इनटू अ मेन वन। सो जस्ट अभी के लिए इनको ऐसे अरेंज करके रखते हैं। नेक्स्ट अब इस वाले को आप इस शेप को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो। इट लुक्स लाइक अपर पार्ट रेक्टेंगुलर है बट नीचे वाला नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, मेरे जो ये मार्की टूल्स हैं, शेप बेस्ड मार्की टूल्स हैं, ये सब फेल हो जाएंगे। लाइक दे वोंट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट दिस कंप्लीटली, बिकॉज इसमें से कहीं ना कहीं कॉर्नर्स आ जाएंगे। अगर यू कुड सी, लाइक अगर मैं इसको ड्रैग करूं तो या तो देखो ये नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा, आई थिंक अपर पार्ट आएगा। बट अगर इफ वी नीड दिस होल, तो मतलब ये किसी तरीके से हम नहीं कर पाएंगे। देखो करेंगे तो ये एक्स्ट्रा एजेस आ रहे होंगे। तो कंट्रोल डी, एंड वन थिंग मोर, जब भी हम कोई सिलेक्शन कर लें, अगर उसे डी सिलेक्ट करना हो तो यूज कंट्रोल डी और कमांड डी, कंट्रोल डी एंड कमांड डी रिस्पेक्टिवली। सो गाइज इसमें हमें जरूरत पड़ती है लासो टूल्स की। तो फर्स्टली हम अभी इस फिगर के लिए, देखो मैं बता देता हूँ, तीनों ही मैं करके दिखा दूंगा इसके लिए। लाइक लासो टूल इज लाइक अ फ्री पेन, मैं इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो बट ये इसका मेजरली काफी कम जगह यूज आता है, व्हाट आई थिंक। तो जैसे अगर मैं इससे भी करूँगा तो आई थिंक मैं जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो ये देखो ये थोड़े थोड़े इम्परफेक्शंस आ रहे हैं, बट अगर इससे ये स्ट्रेट लाइंस ऑब्जर्व करनी है तो यू को जस्ट नॉर्मली देखो फिर गलती हो रही है। तो लासो टूल यूज करना यार बड़ा मुश्किल सा टास्क है, जब तक आप अभी ग्राफिक टैबलेट या टैबलेट पे बैठ के ना कर रहे हो, बिकॉज माउस और कीपैड से एक्सट्रैक्ट इसमें करना मुश्किल हो जाता है। तो लासो टूल की जो इंपॉर्टेंस आती है तब आती है, लाइक अगर आपके पास पीएनजी इमेज हो और उसमें से कुछ एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है और वो औरों के कांटेक्ट में नहीं है, तो आप एक रफ सिलेक्शन बताओगे करके करेंगे तो आई थिंक इट वुड बी गुड। तो मेरे हिसाब से लासो टूल से तो ये हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स ट्राई अनदर वन। अब देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पॉलीगनल टूल है, पॉलीगनल लासो टूल। सो अब इसमें क्या है कि इट क्रिएट स्ट्रेट लाइंस। अगर हम देखें तो हाँ ये देखो यहाँ से हमने सिलेक्ट किया एंड विल जस्ट क्लिक। अगर हम इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस में जाएगा। बट यहाँ से अगर मैं इस पे बनाऊँ, लाइक देखो अभी भी मैं जो कर्व्ड कॉर्नर है वो मैं ढंग से नहीं ले पाया लासो, इस लासो टूल के थ्रू। बट देखो स्ट्रेट लाइंस मेरी काफी अच्छे से ऑब्टेन हो रही हैं, बट कर्व्स जो हैं आई थिंक इतने अच्छे से ऑब्टेन नहीं हुए हैं, व्हाट आई थिंक। तो अब देखो मैं ये स्ट्रेट लाइन परफेक्ट बन जाएगी यहाँ पे, एंड इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब मैं इस पे कंट्रोल जे करके लेयर वाई कॉपी कर देता हूँ, तो आपको ये दिखेगा। अभी इस पे ना इम्परफेक्शंस दिख नहीं रहे होंगे, जस्ट अ सेकेंड। एक हम रेक्टेंगल क्रिएट कर देते हैं पूरे के लिए, तो इम्परफेक्शंस जो हैं उसके वो दिख जाएंगे बहुत आसानी से। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ पे ये जो एजेस हैं ये हमारे वहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगल टाइप के थे, बट अभी भी ये परफेक्टली हमारे पास नहीं आ पाया। परफेक्ट इमेज तो फिर ऑब्टेन नहीं हुई है हमारे पास, तो आई थिंक वी हम फिर से प्रोसीड करेंगे। एंड नाउ व्हाट विल डू, विल बी यूजिंग मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल की स्पेशलिटी क्या है, लाइक ये भी फ्री लासो टूल की तरह होता है कि लाइक इट कुड मूव इन एनी शेप, बट इसकी कुछ एक एल्गोरिदम चलती है फोटोशॉप की, दैट इट रिकॉग्नाइजेज द शेप विच वी आर ट्राइंग टू ऑब्टेन। लाइक मतलब वो फोटो रिकॉग्नाइज करने लग जाता है एंड उस पर कुछ मैग्नेटिक पॉइंट्स बनाने लग जाता है। लाइक मैं ऐसे मूव करूंगा तो आई आई कुड क्रिएट, देखो वो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा जो क्या है वो इमेज पे आ रहा है, एंड मैं इसमें जैसे पॉइंट्स क्रिएट कर सकता हूँ, लाइक एग्जैक्ट जो बॉर्डर्स हैं। एंड अगेन यहाँ पे क्लिक करेंगे
ये देखो इसमें उसने ऑटोमेटिकली वो राउंडेड रेक्टेंगल शेप ले लिया एंड वो धीरे धीरे बीच बीच में पॉइंट्स क्रिएट करता जा रहा है। तो ये यहाँ पे भी लाइक इस पे हल्के हल्के क्लिक कर, तो ओ ये गाइस मैं थोड़ी अभी रफ करके दिखा रहा हूँ एक्चुअली। टाइम ये सब बैठ के थोड़ा आराम से करते हैं। लाइक अगर करने लगे तो आई थिंक इट विल टेक मच लॉट टाइम। तो मुझे सिंपली यहाँ से हम लोग कंप्लीट, मोस्ट प्रॉब्ली सही आ गई है। ये देखो ये ऑब्टेन हो गई एंड इसको मैं कंट्रोल जे करूँ, वो हल्का सा एक स्पॉट उसमें आया होगा। ये देखो बस एक हल्का सा ये पार्ट आया एंड आई थिंक इसको भी हम देखो कुछ गलती हो तो किसी ना किसी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। लाइक मैं हल्का सा इसको पेंट ब्रश लूंगा अपना नॉर्मली एंड उसकी हार्डनेस फुल कर दूंगा, साइज भी छोटा रखूंगा एंड देखो मैं ये पार्ट यहाँ पे क्या है मैं इसको सही कर सकता हूँ। Like, इसको हम प्रेस शिफ्ट एंड यहाँ पे हल्की सी जो इम्परफेक्शन है लाइक देखो ये सॉर्ट कर दी। अगर आपसे इमेज खराब हो इन केस, बट अगर आपके पास कोई ऐसे काउंटर टूल्स हैं तो वो सही कर सकते हो आप बहुत आराम से। तो इट्स लाइक कि अगर कुछ इमेजेस खराब भी हो रही हैं तो उन्हें सही भी कर सकते हैं। सो गाइस देखो अभी ये विंडो है, हम ड्रैग कर लेंगे अपने मेन स्क्रीन पे। अभी देखो ये ऐसी रैंडमली मैं ड्रैग करके ला रहा हूँ सबको एंड धीरे धीरे एक एक को सिलेक्ट करना चूज करेंगे। ओके, दिस वन ओनली। Let's hide these layers and make this uppermost. Next thing, I think now let's go to a main selection. That is, see here we have two types of selection tools. That is, one is quick selection tool and the magic wand tool. Now, guys, trust me, these are the one of the most used selection tool that you'll be using in further cases. So first, we'll be discussing magic wand tools. See, magic wand tool, what exactly it does is like, I think we'll be extracting this image. I think it's good. So guys, जैसे मैजिक वॉन्ड का बेसिक कंसेप्ट है कि एक ये पर्टिकुलर शेड को आप क्लिक करो तो उस पर्टिकुलर शेड का जितना पोर्शन कनेक्शन में है वो ऑटोमेटिकली उसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा, जितना पोर्शन आपके पास है। एंड इफ यू प्रेस ऑल्ट प्लस शिफ्ट तो क्या होगा, हम उसमें एरियाज ऐड करते जाएंगे। अब नेक्स्ट व्हाट विल बी डूइंग इज लाइक देखो अब मैं सिंगल क्लिक किया एंड दिस पोर्शन गेट सिलेक्टेड एंड अब ये वाला सिलेक्ट हो रहा है। तो देखो आप इसमें मैं एक पर्टिकुलर चीज ऑब्जर्व करो तो एक जो सिंगल कलर है जस्ट वही एक बार में ये आइडेंटिफाई करता है एंड ऑटोमेटिकली वो पार्ट सिलेक्ट कर देता है, ठीक है। बट इफ वी प्रेस शिफ्ट तो क्या करेगा, ये पार्ट ऐड करता जाएगा उसमें ऑटोमेटिकली। लाइक मैंने अभी शिफ्ट प्रेस किया हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली मेरा मेजर पार्ट जो है जो मैं जिस पे मैं क्लिक करूंगा वो कवर करता जाएगा। लाइक जितने भी शेड्स होंगे सारे एक एक करके हम ऐसे करके मतलब ऑन अ सिंगल क्लिक देख रहे हो आप पूरी इमेज जो है ये ऑटोमेटिकली हम ऑब्टेन कर पा रहे हैं। लाइक अब मैं हेयर पे कर दिया, यहाँ पे ये जो पार्ट्स रह रहे हैं जस्ट ऑन अ सिंगल क्लिक आई थिंक हम एवरीथिंग जहाँ जहाँ पे मेरे को सिलेक्ट करने हैं वो मैं कर सकता हूँ। Like we have chosen this part also and this zoom। अब मैं जूम करके भी दिखाऊं तो आप देख रहे हो बहुत एग्जैक्ट पोर्शंस एंड लाइंस हैं उन पे सिलेक्टेड है। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े इम्परफेक्शंस थे तो हमने क्लिक किया एंड वो ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पे भी देखो ये पार्ट आ गया हमारे पास एंड इधर भी है। तो विल जस्ट प्रेस शिफ्ट एंड यूज दिस। कहीं पे कोई पार्ट्स रह गए हैं आई थिंक, देखो सारे पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं एंड देखो ये वाइट बैकग्राउंड नहीं चाहिए तो उसको हमने एक्सक्लूड कर रखा है अभी के लिए। एंड इसको भी देखो अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये पोर्शन भी कंप्लीटली सिलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके मैंने ये भी सिलेक्ट कर दिए। तो देखो गाइस पूरे प्रॉपरली क्या हुआ है, पूरे फिगर पे मेरी एग्जैक्ट ड्राइंग्स बन गई है एंड ये काफी एक्यूरेट है। आप एक्यूरेसी लेवल चेक करो, मैं बहुत जूम करके भी दिखाता हूँ। तो लाइक एग्जैक्ट जितने बॉर्डर्स पे हैं। तो मैजिक वॉन्ड का बेसिक कंसेप्ट है, ये क्या करता है, ये जस्ट कलर आइडेंटिफाई करता है, पर्टिकुलर कलर आइडेंटिफाई करेगा एंड वो पार्ट सिलेक्ट करता जाएगा, ठीक है। लेयर लॉक्ड है तो इसको अनलॉक करेंगे एंड दिस एंड विल जस्ट प्रेस कंट्रोल जे। तो देखो मेरे पास ये फिगर ऑब्टेन हो गई
एंड सिंपली ये हमने पूरा पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। लाइक अब जस्ट इसको मैं क्लिक करूंगा एंड आई विल ड्रैग इनटू दैट पर्टिकुलर लेयर। तो ये देखो हमारे पास एग्जैक्ट ये पार्ट आ गया, बट आप देख रहे हो अभी मुझे इसमें शैडो रिक्वायर्ड नहीं होगी। तो आई थिंक वो हम अभी उसे रिमूव करेंगे, फिर नॉर्मली यूज करेंगे एंड अभी वो रिमूव कर देंगे। बट एक देखो बेसिक सिलेक्शन जो हमें करना था, आई थिंक वो हमने काफी अच्छे से ऑब्टेन कर लिया है। And next thing what we'll be doing now, we'll be discussing quick selection tool. Hope magic wand clear हो गया होगा। मैजिक बॉन्ड और क्विक सिलेक्शन में यही एक मेन डिफरेंस है। लाइक दोनों ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे, बट जो मेजर डिफरेंस आएगा, क्विक सिलेक्शन क्या है, सेमी कलर्स को भी ऑब्टेन करता है एंड इसमें थोड़ा देखो ब्रश साइज वैसे होता है। जस्ट टेलिंग इट लाइक अब मेरे को क्या करना है, आई थिंक ये वाली फिगर एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लोग अब नेक्स्ट। तो इसमें भी आप देखो तो मल्टीपल कलर्स हैं एंड बट अगर अब इसमें से मैं स्टार्ट करूंगा तो आई जस्ट क्लिक एंड मैं ड्रैग करता जाऊंगा। तो मेजर जितने पोर्शंस हैं मेरे पास वो आते जाएंगे। लाइक इसमें थोड़ी इम्परफेक्शंस आती हैं, बट उसको देखो हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। देखो ये ऑटोमेटिकली क्या है कि लेयर्स ही क्रिएट करता जा रहा है। आई थिंक दैट्स कुछ एक स्पेसिंग एरर आ रही है आई थिंक। तो लाइक अब देखो ये इतना पार्ट सिलेक्ट कर लिया, बट मुझे और सिलेक्ट करना है, तो आई जस्ट मैं इसको ड्रैग करता जाऊंगा तो देखो ऑटोमेटिकली ये पूरा पार्ट सिलेक्ट होता जा रहा है। तो लाइक अभी इसमें से वाइट स्पेसेस हटानी पड़ेंगे आई थिंक, बट दिस वोंट बी गुड टू एक्सप्लेन दिस। इसमें क्या है, हमारा मैजिक वॉन्ड टूल काफी अच्छा काम आएगा। बट इफ वी चूज दिस वन, इसमें क्या है, डायरेक्टली ही पूरा ऑब्टेन करना है। तो जस्ट we'll start with the face and just कंट्रोल डी एंड बस ड्रैग करता जा रहा हूँ। देखो कुछ कुछ एक्स्ट्राज भी आ रहे हैं, विल रिजॉल्व दैट लेटर। तो ये देखो ऑटोमेटिकली ये मेरा इतना पार्ट सिलेक्ट कर लेगा। देखो एक ये देखो रफ सिलेक्शन तो बन गया है बहुत आसानी से। इस फिगर को आप अगर लासो टूल या किसी और से करने लगते तो काफी टाइम लग जाता, बट ये नहीं हुआ। बट इफ यू प्रेस ऑल्ट, तो जो ये आप ब्रश का साइज साइन देख रहे हो उस पर माइनस हो जा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ आई मूव दिस, अगर मैं ऐसे ऐसे मूव करूंगा तो देखो वो वहां वहां से वो एरियाज सब्सट्रैक्ट होते जाएंगे। प्रॉपरली वो देखो सब सब्सट्रैक्ट हो गए वो पार्ट्स जो हमें नहीं चाहिए थे। लाइक अब मैं इस पार्ट को भी मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। लाइक अब वो ऑटोमेटिकली इतना इतना पार्ट पे आएगा। लाइक देखो इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो लाइक अभी जल्दी जल्दी मैं करके बता रहा हूँ, बट परफेक्शन से हम लोग आप लोग ट्राई करना तो इट वुड बहुत आराम से हो जाएगा। तो सिलेक्शन टूल्स में ये देखो अब देखो एक इसमें एरर ये भी है कि अगर मैं अभी थोड़ा साइज छोटा कर लूंगा तो आई थिंक वो ज्यादा प्रिसाइज वाले उससे लेगा। यस एग्जैक्टली, वो ज्यादा प्रिसाइज उससे लेगा। एंड देखो ये पोर्शन भी हमें हटाना है, तो जस्ट ऑल्ट क्लिक करके ऑल्ट ऑल्ट प्रेस रखना है, बिकॉज ऑल्ट से वो लेयर है वो उसका सिलेक्शन माइनस करता है। लाइक ये पार्ट मैंने क्रिएट कर दिया, फिर अब सिलेक्शन अभी क्रिएट हो रखा है। लाइक दिस पोर्शन इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, तो जस्ट हम उसको ड्रैग करते जाएंगे एंड ऑटोमेटिकली ये देखो ये सारा पोर्शन अपने आप ही वो सिलेक्ट कर लेगा। लाइक क्विक सिलेक्शन का काफ़ी रोल होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखो काफ़ी चीज़ें आसान कर दी हैं, बट कई कई जगह इम्परफेक्शंस आ जाएंगे, तो कोई उसकी दिक्कत नहीं है। तो वो सॉल्व कर लेना आराम से बैठ के, मतलब थोड़ा तसल्ली से अगर करें तो आराम से हो जाता है। लाइक मैं इसके अराउंड ही ब्रश छोटा कर दिया है मैंने, तो मैं इसके अराउंड ही मूव करूँ। लाइक ये पोर्शन मेरा देखो जूम करके एन एग्जैक्ट साइज एंड शेप हमें ऑब्टेन करने के लिए ये बहुत नेसेसरी होता है। लाइक इससे काफ़ी अच्छे से ऑब्टेन हो जाता है। लाइक एक इसमें और लाइक अब देखो अब मैं अगर इसको कंट्रोल जे करके किसकी इमेज की कॉपी बनाऊँ एंड आई जस्ट ड्रैग इट, तो अब हमें डिफरेंसेस पता चलेंगे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। एंड ये देखो इस तरीके से हमने देखो ये काफ़ी अच्छे से कि ये वाली इमेज ऑब्टेन कर ली। बट आई थिंक अभी परफेक्टली नहीं हुई है, थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी में किया है इसलिए ऐसा लगा है। बट अगर हम देखें तो ये सारी इमेजेस काफ़ी अच्छे से ऑब्टेन हुई हैं। जस्ट एक बेसिक अरेंजमेंट कर देते हैं इनका।
बहुत बेसिक तरीके से हमने ये सारी इमेजेस ऑब्टेन किए हैं। तो अभी देखो इसमें मैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐड कर सकता था, लाइक आप इसमें कबर्ड ऐड कर सकते हो, एनीथिंग यार, जो भी आप एक रूम में उसे डिज़ाइन करने के लिए सोच सकते हो, तो लाइक उस तरीके से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड फर्नीचर में अगर कुछ अभी और ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं बहुत आसानी से। लाइक अगर अभी तो देखो यार, ये सारे ना सिंगल कलर्ड फिगर्स हैं, तो इसमें अगर मैं मैजिक बॉन्ड यूज़ करूंगा तो आई थिंक बहुत बेनिफिशियल होगा। मैजिक वॉन्ड सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली जस्ट क्लिक और शिफ्ट प्रेस करके इन सारी लेयर्स पे ऑटोमेटिकली क्लिक करते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिक काफ़ी अच्छा सिलेक्शन बनता रहेगा। ये देखो वो एक्स्ट्रा शैडो भी आ गई, तो देखो वहाँ वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें आएंगी। हर टूल्स के देखो कोई ना कोई प्रोज एंड कॉन्स सब हैं, बट अगर यार देखो किसी पर्सन की इमेज एक्सट्रैक्ट करनी है फ्रॉम अ पर्टिकुलर बैकग्राउंड, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिलेक्शन टूल्स आई थिंक काफ़ी नेसेसरी होते हैं। ये देखो मैंने उसे माइनस कर दिया एंड देखो वो ऑटोमेटिकली उतना पार्ट चला गया, एंड सिंपली जस्ट इन अ फ्यू क्लिक्स हमारे पास इमेज ऑब्टेन हो गई। एंड जस्ट वी वुड ड्रैग दिस टू आवर इमेज टू, लाइक इसको प्लेस कर देंगे, इधर प्लेस कर दिया। थोड़ी हैप्पीजर्ड सी इमेज बन रही है बट आई थिंक इट्स ऑल राइट। साइजेस हम थोड़ा चेंज करेंगे कंट्रोल टी से। लाइक देखो साइजेस और ये सब जो मुझे पर्सनली लगता है कि हिट एंड ट्रायल से हम लोग ज़्यादा अच्छा करते हैं, बिकॉज जितने कॉम्बिनेशंस एंड एवरीथिंग हम ट्राई करेंगे फोटोशॉप पे, तो उस हिसाब से वो ज़्यादा परफेक्ट चीज़ें बनती जाएंगी। जस्ट सिंपली हमने ये भी ऑब्टेन कर लिया, तो गाइज एक सिंपल तरीके से हमने इतनी सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली। एंड देयर इज वन मोर वे, आई थिंक इसमें नहीं बताएंगे। सिंगल कलर्ड, आई थिंक ये वाला पार्ट। देयर इज वन मोर वे, दैट इज कलर रेंज। कलर रेंज क्या करता है, जैसे मैंने आई थिंक ये कलर सिलेक्ट कर लिया, तो ये जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सब की इमेजेस एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लाइक ये देख रहे हो आप, जितने भी पर्पल कलर हैं पूरे, जो भी कलर है, ये डार्क रेड या लाइट रेड, तो इतनी ये जो पूरी मेरी पर्टिकुलर इमेज सिलेक्टेड है, उसमें जितने भी पार्ट्स होंगे उस कलर के, वो ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट कर लेगा। लाइक मैंने कंट्रोल जे किया, तो गाइज ये देख रहे हो आप, जितने जितने पार्ट्स थे, हाइड करते हैं, जितने जितने भी इस कलर के पार्ट्स थे, तो वो कर सकता है। तो यहाँ पे सिलेक्ट पे जाके कलर रेंज, इन केस अगर कभी आपको कलर रेंज मतलब क्या हो कि बैकग्राउंड ब्लैक है और आपके सब्जेक्ट में मल्टीपल कलर्स हैं, तो एक सिंपल क्लिक से क्या कर सकते हो, जस्ट ब्लैक को सिलेक्ट करो एंड उसे डिलीट कर दो, तो आपका बैकग्राउंड गायब हो जाएगा। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि, बट इसमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो आप कलर चूज कर रहे हो वो आपके मेन सब्जेक्ट में नहीं है, तो नहीं है जो आपको सिलेक्ट करना है। तो हम इन शॉर्ट काफ़ी सारे ये टूल्स यूज़ करके एक नॉर्मल सिलेक्शंस अच्छे से ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हाट आई थिंक इज, एंड आई थिंक सारे टूल्स कवर ही हो गए हमारे ऑलमोस्ट। हाँ एग्जैक्टली, पेन टूल है अभी। एक पेन टूल आपको जब वेक्टर्स एंड ऑल करवाएंगे उसमें ज़्यादा अच्छे से मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा कि पेन टूल्स का क्या इम्पोर्टेंस होती है बेसिकली, क्योंकि पेन टूल भी एक सिलेक्शन टूल है। एंड उससे मतलब देखो, ये तो नॉर्मल बेसिक क्रॉप टूल है, इससे क्या होगा कि पूरी फोटो क्रॉप हो जाएगी, तो इसका तो अभी यूज़ नहीं है, तो बहुत बेसिक चीज़ है, वो तो हम अपने सिलेक्शन वाले से ही अच्छे से कर लेते हैं। तो आई थिंक इसका क्रॉप तो बहुत रेयरली ही यूज किया होगा मैंने अपने इमेजेस में। बट द थ्री इंपॉर्टेंट सिलेक्शन टूल्स आर लाइक शेप एंड लासो, and next one is the selection tools, magic wand and the quick selection. These are like extremely useful one,